So see, this much is your syllabus and degree of the polynomial is the first one. इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं. फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में वी विल स्टडी व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है. फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये तो हमें पता ही है. ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें आपको कंसेप्चुअल ये समझना है बेसिकली कि अगर कोई कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है एंड इफ देयर इज ग्राफ, then you have to identify that in quadratic polynomial there will be 2 zeros, in cubic there will be 3. It will be directly related to the the power of the or the degree of the polynomial. जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा उसका that particular graph will touch the x axis. ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है. Relationship between zeros and coefficients, it's a maximum questions बनेंगे. So you have to take this into your account, into your consideration, that relationship between zeros and the coefficient is the most important thing that we have to discuss in this chapter. कुछ भी नहीं है. डिवीजन एल्गोरिदम आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है this one, then we divide like this. Okay, this is the divisor, dividend, quotient and here is the remainder. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, that formula says dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. तो इसी का अप्लाइड फॉर्म है ये डिवीजन एल्गोरिदम. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस एमसीक्यूज. तो जल्दी से स्टार्ट करके फटाफट कंप्लीट करते हैं. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बताइए. Degree of the polynomial is not that. Degree of the polynomial is nothing but the highest value of the power. हाँ, highest power of the polynomial is called zero of the polynomial. अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं √5x³ plus 3x square minus 7 is equals to 0, then what is the degree of the polynomial in this? Degree of the polynomial is here it is 3. Why? Because the highest power of x is 3. अगर मैं लिखूं 3x to the power 7 plus 9x is equals to 8, then what is the degree? Degree is nothing but 7. Why? Because the highest power is 7. Okay. On the basis of degree, basically we divide the polynomial into two categories. One is the linear polynomial and the other is the quadratic. Linear के पास डिग्री 1 होती है ना. linear का अगर मैं कुछ examples लिखूं तो we can write 5x plus 3 is equals to 0, let us say, है ना. and quadratic polynomial का अगर कुछ मैं example लिखूं then 2x square plus 7x plus 3. समझ आ रहा है? Are you getting? कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ भी नहीं है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. टेल मी व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. yes, exactly, the value of x which corresponds to the value of x which makes the whole polynomial 0. okay, the value of x which makes the polynomial px correspond to 0 is called the zero of the polynomial. for example, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में लूं x² plus 7x plus 10. अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल का. 5x plus 3 is equals to 0. कैन यू टेल मी व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? 5x plus 3 is equals to 0. तो what is the zero of the polynomial? Just जल्दी से बताइए. What is the zero of the polynomial? If 5x plus 3 is equals to 0, then what is the zero of the polynomial? Zero of the polynomial is nothing but the solution. ऐसा मैं क्या वैल्यू रखूं x का जो ये पॉलिनोमियल है वो correspond to 0 हो जाए. बताइए जल्दी से. इसको सॉल्व कर देना है बस. 5x plus 3 is equals to 0.
Yes, exactly. Minus 3 upon 5 is the degree, is the zero of the polynomial 5x plus 3. ठीक है. अच्छा, एक और बात आपको समझने की जरूरत है यहां पर. वी शुड नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरी इक्वेशन, वेदर इट इज लीनियर इक्वेशन, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक, वेदर इट इज क्यूबिक, है ना. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था. स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का क्या हो जाता है? कैन यू टेल मी? ax plus b is equals to 0. What is the standard form for the quadratic? ये मैं क्यों लिख रहा हूं? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज ये आपको काम आएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. वहां पे आपको ए बी की जरूरत पड़ेगी और सी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर फॉर द क्वाड्रेटिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये आपको हमेशा याद रखना है. वेयर ए बी एंड सी आर, व्हाट आर they are constants. Done. And x is the variable. ये तो पता ही है आपको, x is the variable. Done. जिस तरह से अभी हमने जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 5x प्लस 3 निकाला, उसी तरह से हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसका भी निकाल सकते हैं. there are so many methods. सॉरी, देयर आर सो मेनी मेथड्स. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने काफी सारे मेथड्स देखे हुए हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द मेथड कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. फॉर एग्जांपल वी हैव द मेथड कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, है ना. तो अगर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें देन व्हाट विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल? कैन यू टेल मी? जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन इन योर नोटबुक बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन क्या होता है? टेल मी व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? वी स्प्लिट द मिडिल टर्म. We split the middle term into two parts. And how do we split? By finding out the prime factorization of the last term, that is c. c को prime factorize निकालिए c का पहले तो, and tell me what is the zero of the polynomial in this case. Can you tell me what is the zero of the polynomial? Very good. This is -5 and -2. -5 and -2 is the zero of the polynomial. Why this is zero of the polynomial? Because when we put this -2 and -5 in the place of x, then it will be corresponded to 0. एक बार रख करके देख लेते हैं. Suppose we will take -5 in place of x. So this will become -5 whole square plus 7 into -5 plus 10, isn't it? -5 का होल स्क्वायर 25 होता है. उसके बाद फिर 7 इंटू -5 -35 एंड -35 प्लस इंटू माइनस. सो -35 वी विल राइट प्लस 10. सो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 35 - 35, सो इट इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, द आंसर विल बी द सेम. दैट विल बी -5 एंड -2. एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तक क्लियर है? डिग्री ऑफ द, देखिए कितना भी घुमा फिरा के वो आपसे क्वेश्चन करे, बोर्ड आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन करे, कंफ्यूज नहीं होना है. आपने देख लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर जीरो पूछ रहा है बस डायरेक्ट उसको प्राइम फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालिए, 2 0 निकलेगा, दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. आगे अभी हम लोग और भी जो इसके टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे. घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा और यू कैन सॉल्व विदाउट एनी मच डिफिकल्टी. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर यहां तक क्लियर है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तक? तो बेसिकली अभी तक क्या पता चला? लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 0 होते हैं और क्यूबिक में 3 0 होते हैं. ठीक है. एंड देयर डिग्री विल बी रिस्पेक्टिव.
लीनियर के 1 डिग्री 1 डिग्री होता है लीनियर में, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है, उसी तरह वो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, कैन यू टेल मी, अगर मैं आपको दो इक्वेशंस दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट, कैन यू टेल मी दिस? अगर मैं दो रैंडम इक्वेशन दूं आपको और फिर पूछूं कि इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कैन यू टेल मी? जस्ट टेल मी दिस, आंसर दिस। x is it a quadratic equation, quadratic polynomial? Yes, how? So what? Here it is this, here it is this. It's not a quadratic one. आपके लिए ये नेसेसरी है, द पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन फ्रैक्शनल। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दिस शुड बी नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल। ये तो नेगेटिव आ गया यहीं पर, ये फ्रैक्शन में है, यहां पे अगर मैं 3√x को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁻1/2, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। सो दिस डज नॉट वैलिडेट दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को भी पहचानने का आपके पास तरीका होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। 4 ऑप्शन देंगे, चारों में वो कुछ कुछ दे देंगे, किसी में वो फ्रैक्शन दे देंगे एक्स के ऊपर, किसी में वो नेगेटिव पावर दे देंगे, देन दे ऑल विल बी दे कांट बी द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तक क्लियर है। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है इसकी देखिए, सपोज अभी जो हमने एक लिखा, हाँ okay, what is the geometric meaning of the zero of the polynomial? Suppose we have the linear polynomial this 5x plus 3 is equals to 0. Got it? Now what will be the zero of the polynomial? For this case, zero of the polynomial will be -3/5. Got this? अगर मैं लिखूं 5x plus 10 is equals to 0, what will be the zero of the polynomial? So if I write 5x plus 10 is equals to 0, then what will be the zero of the polynomial in this case? It will be -2. अब देखिए इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, इसको आपको प्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? अगर मैं इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका लिखूं, तो अगर आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा ऐसा जिससे कि आप कंफ्यूज होइएगा। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है, ये एक्स और वाई वाला है ना, एक्स की वैल्यू इतना रखे तो वाई कितना हो जाएगा, है ना, द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। अगर सपोज कीजिए कि आपको y 0 लाना है तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, y अगर 0 लाना है तो x की वैल्यू हमें -2 रखनी पड़ेगी। दिस इज नथिंग बट द जीरो ऑफ -2 रखनी पड़ेगी। अगर हमें x 0 करना है, इफ वी विल पुट x as 0, देन व्हाट विल बी द y? अच्छा, इसमें y क्या है, बेसिकली y इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 5x plus 10 है, ध्यान रखिएगा, y इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 5x plus 10। अब इस इक्वेशन को देखिए आप और बताइए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। सिंपल, गॉट दिस? अब इन दोनों को मिलाते हुए एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। x 0 होना चाहिए, ये दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, x -2 तक जाएगा, -1, दिस इज -2, एंड y 10 तक, सपोज दिस इज 10। ठीक है, तो पहला तो हमारा है -2 0, यानी दिस वन इज द पॉइंट, एंड द सेकेंड वन इज 0 10, दिस वन। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर ग्राफ, इजंट इट?
यस और नो? दिस इज आवर ग्राफ, गॉट दिस? अब एक बार ध्यान में रखिए, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा निकला था, ये वाला पॉइंट, -2 वाला पॉइंट। ये क्या बता रहा है इस ग्राफ को देख करके? कैन यू टेल मी कि ये बताना क्या चाह रहा है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस कंडीशन में होगा? द कंडीशन इज the point on the graph when touches the x axis is nothing but corresponds to the zero of the polynomial। जब ग्राफ का जो पॉइंट अगर x एक्सिस को टच कर लेता है तो वही पॉइंट उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। मतलब दिस पॉइंट वेयर इट इज टचिंग द x एक्सिस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं एक ग्राफ दे करके और यहां पे मैं लिखूं -4 और यहां पे मैं लिखूं 3, तो कैन यू टेल मी, पहले तो ये एक पाराबोला है, पाराबोला मतलब ओपन पाराबोला, क्लोज पाराबोला होता है। ऐसा जब भी कोई फिगर में आपको दिखे ना तो ये पाराबोला होता है, ज्यादा इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है? ये पाराबोला होता है। तो ये ओपन पाराबोला है या पाराबोला है लेट अस से, ठीक है? अगर मैं ऐसा शो करूं आपको और मैं आपसे यहां पे मैंने लिख दिया है -4, यहां पे मैंने लिख दिया है 3, फर्स्ट तो आप ये बताइए मुझे कि दिस ग्राफ इज ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक? पहले तो ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है या लीनियर का? क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो नो हियर इज, अच्छा अब तो बताइए ये क्वाड्रेटिक है, एक बात तो क्लियर हो गई। नाउ टेल मी व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जस्ट बाय लुकिंग द ग्राफ। Tell me what is the value of the zero of the polynomial just by looking the graph. Quadratic polynomial है तो 2 zeros होंगे। What are those 2 zeros? अभी अभी मैंने बताया है आपको इसमें कि the graph when touches the x axis it is nothing but the zero of the polynomial। तो these two values are the zero of the polynomial। Yes, zero of the polynomial is -4 and 3। अब एक क्वेश्चन, चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन सुनिए, एक एमसीक्यू मैं दे रहा हूं, उसका आंसर बताइए मुझे। आई एम गिविंग वन एमसीक्यू, जस्ट आंसर मी। Tell me the answer. How many zeros of the polynomial is there of the graph? See this graph, this is the graph. You have to tell what is the number of the zero. One, 2, 3, 4. So the answer is 4. Good. So the answer is 4. Got this? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर यहां पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि इन द गिवन ग्राफ व्हाट इज द पावर और व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन व्हाट विल बी द आंसर? इन द गिवन ग्राफ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? व्हाट इज योर आंसर? वेरी गुड। द आंसर विल बी अगेन 4। व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा डिग्री होगा उतने ज्यादा ही तो जीरो आएंगे और उतना ज्यादा ही वो टच करेगा। गॉट दिस? वेरी नाइस। ओके, सो आई होप कि आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यहां तक कोई डाउट अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी मिस्टेक। ओके, एंड में मैं आपसे एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी। जिस भी तरह के एमसीक्यूज बनेंगे, एमसीक्यूज कहां से बनेंगे? एनसीईआरटी से बनेंगे। जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उतने से ही एमसीक्यू बनेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आप में, दैट्स इट। नो नीड टू वरी टू मच। ओके, गिव मी 1 सेकेंड।
Okay. So now relationship between zeros and the coefficients. What is the relationship? आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या है रिलेशनशिप. What is the relationship? We try to find out we try to relate two things in between coefficients and the zeros. One is the product of the zeros, and the other is the sum of the zeros. सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. पहले तो आपको जीरोज क्या होता है वो क्लियर है कि दिस इज नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इसका सम और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या है इसके कोफिशिएंट्स के साथ. इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a, b and c, these all three are the coefficients. Okay, this may be positive, this may be negative. ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जो भी होगा आप यहां पर लिखिएगा उसको. सपोज वी हैव वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x plus 10. Now you tell me what are the zeros of this polynomial. Find out. अच्छा, अभी तो हमने इसका find out किया है ना. What are the zeros of the polynomial? This was -2 and -5, right? This was -2 and -5. अब बताइए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा. What is the sum of the zeros? -2 plus -5? Yes or no? Okay, and what will be the product of the zeros? -2 into -5. आंसर बताइए सम ऑफ द जीरोस का. -2 -5 दिस इज -7 एंड -2 -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन 10. अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है उसको गौर से समझिए. सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a. चेक कीजिए ये सही है फॉर्मूला. यहां इस केस में व्हाट इज a? a इज 1. व्हाट इज b? 7. व्हाट इज c? 10. तीनों पॉजिटिव है इस वजह से मैंने पॉजिटिव लिखा. इट मे बी नेगेटिव. सो व्हाट इज b? b इज 7. तो -b लिखना है तो -7 लिख दिया. व्हाट इज a? a इज 1. सो द आंसर इज -7. हमने निकाला भी -7 है, फॉर्मूला से भी -7 आया. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला सीम्स टू बी करेक्ट. Isn't it? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखिए. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को निकालिए. फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? c अपॉन a. व्हाट इज c? c इज 10. व्हाट इज a? a इज 1. सो द आंसर इज 10. निकाला भी हमने 10 है. दिस फॉर्मूला ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट. एनी डाउट?